Hello friends, our today's topic is motional electromotive force and energy consideration. Okay, we are starting our sixth chapter. In last lecture we have discussed about Faraday's law and Lenz's law. Okay, today's topic is motional electromotive force. What is the meaning of motional electromotive force? The electromotive force we generate by moving something, coil or loop, then the force is called motional electromotive force. It is nothing. हमने जो आगे देखा वही है. ओके, हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, बस यहाँ पे वेलोसिटी आएगी. ओके, वी कैन वेलोसिटी की बात करेंगे साथ में. ओके, एंड एनर्जी कंसिडरेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फिगर. यू वॉट दिस फिगर. द magnetic field B can't change with time. Okay, it's fixed. And inside you can watch this cross. Okay, आपको वो क्रॉस दिख रहा है, आप समझ सकते हो कि अभी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है. द लूप PQRS is rectangular loop in the rod PQ is movable, freely movable in any of the direction. Okay, and the length of R to S is L and the length of R to Q is X. Okay, if the rod is free to move, PQ rod is free to move, then this X will decreases or increases. Okay, then if we move the rod, then the magnetic line passing through it changes. If the magnetic line passing through is changing, then magnetic flux will be changing, and if the magnetic flux will changing, then the EMF is generated. We all know this Faraday's law, and direction also known by Lenz's law. Okay, we later we discuss about that. Okay, if the rod of PQRS loop, the rod PQ is moving with a constant velocity by pushing it. If we push the rod PQ with a constant velocity V, then the magnetic flux will be changed. Before we start change, what is the magnetic flux over at this position? The loop PQRS, then the magnetic flux will be BA cos theta. B is the B can't change. Area of the loop, L is the length and X is the width. Okay, sorry, or say L is the width and X is the length. Then the area will be L into X, rectangular shape. Okay, cos theta. Theta is the angle between the area vector and the magnetic field. The loop's area vector is coming outside at a 90-degree angle and the magnetic field inside. Then the the angle of the between two is 180 degree. Okay, and the cos 180 degree is equal to -1. Then the magnetic flux will be minus BLX. Okay, the magnetic flux will be minus BAX. I wrote it all the equation over here, so we had more time to explain it and we save time for written it. Okay, you can watch it here. Okay, let's find the magnetic flux. If we push the rod with a constant velocity V in this direction, then the magnetic flux will be changed. Then what is the rate of change in magnetic flux? If the rate in change in magnetic flux, if अगर हम बोले कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसी को तो ईएमएफ बोलते हैं. देन द ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. ये कहां से आया? फैराडे के लॉ के ऊपर से. ओके, फैराडे इज गिवन दिस लॉ. ओके, देन द माइनस डी बाई डी टी. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आया था हमारा? मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस बी एल एक्स, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है. माइनस माइनस प्लस, बी और एल कांस्टेंट है, वैल्यू बी की नहीं चेंज हो रही है. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर it's also not changing, only x decreases. Then the change in x, then dl कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या रह गया? d5 by dt, dx by dt and dx by dt. All we know that dx by dt distance upon time, it's called a velocity v. Then we wrote it is v. Then our equation become, this is the b, epsilon is equal to blv, and this equation is the motional EMF equation. EMF induced by motion is equal to epsilon is equal to BLV. You have to remember it. Okay, we can find EMF, generating EMF. We are not find the current induced. हमको करंट इंड्यूस फाइंड करना है तो हमें पूरी लूप चाहिए.
मैंने आगे भी आपको फैराडे के लेक्चर में बताया हुआ है, अगर हमको सिर्फ ईएमएफ जनरेट करना है, इफ वी वांट टू जनरेट ओनली ईएमएफ, देन विदाउट एनी क्लोज लूप वी कैन जनरेट ईएमएफ इन दिस रॉड बाय प्लस और माइनस साइन। इफ कैसे होता है हम ये समझते हैं। ओके, द मैग्नेटिक, देखो यहाँ पे मैं एक छोटी सी फिगर ड्रॉ कर रहा हूं आप थोड़ा समझने की। ये हमारी पी क्यू रॉड है, रॉड पी क्यू। ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इनसाइड। ओके, इफ वी ट्रैवल दिस रॉड विथ v वेलोसिटी, आप यहाँ वहां पे फिगर में भी देख सकते हो, अगर हम इस रॉड को v वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे तो इस रॉड के अंदर जो फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स है, फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, उस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर हम v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैवल करेंगे तो b मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और वो फोर्स की फॉर्मूला क्या आएगी, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला हमने कहां पे पढ़ी हुई है, इन फोर्थ चैप्टर। ओके ओके, इन फोर्थ चैप्टर वी नो दिस फॉर्मूला, वी लर्न दिस फॉर्मूला। ओके, फ्रॉम दिस फॉर्मूला if the q is the चार्ज ऑफ दिस रॉड, इस रॉड के अंदर फ्री मूवेबल इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज अगर q है, इस रॉड की वेलोसिटी v है, एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स गोइंग इनसाइड इज द b, देन द फोर्स विल बी q v क्रॉस b। हम क्या करें, फॉर अ रॉड वी फाइंड आउट pq, हम pq रॉड के लिए फोर्स के ऊपर से मोशनल ईएमएफ मैंने बताया BLV फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आगे ये लूप के ऊपर से फाइंड किया, वही चीज हम रॉड के ऊपर से भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे हो रहा है वो हम समझ रहे हैं। ओके, देन द F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, एंड द V is in this direction and B is in this direction. The angle between V and B is 90 डिग्री। देखो यहाँ पे एंगल देखो, ये देखो एंगल 90 डिग्री है, then the 90 डिग्री एंगल, then VB sin theta sin 90 is equal to 1, then what is यहाँ पे क्या रह जाएगा, F is equal to QVB, F is equal to QVB. Now if we find out the F, force acting on a rod P, यहाँ पे हमको ये नहीं पता चला कि EMF जो जनरेट हुआ वो उसका पोलैरिटी कौन सी कहां पे आई। अगर यहाँ पे इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, देन व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यहाँ पे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे और किस डायरेक्शन में प्रोटॉन्स इकट्ठे होंगे, वो कैसे पता चलेगा। देन वी हैव टू नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेट्स वॉच, मैं क्या कर रहा हूं, आप देखो V की डायरेक्शन ये है और B की डायरेक्शन ये है, तो V क्रॉस B करूंगा तो फोर्स कहां पे लगेगा, नीचे। और अगर मैं B क्रॉस V करूंगा, B से V पे आऊंगा तो फोर्स ऊपर लगेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देखो, यहाँ पे V इस डायरेक्शन में है और B अंदर जा रहा है। ओके, तो हम V से B पे जाएंगे, आपको ये तो पता है, V क्रॉस B करना है तो पहले हमको फिंगर को V के ऊपर रखना है, फिर B की डायरेक्शन में जाना है, देन द थंब विल शो एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, V क्रॉस B करेंगे तो फोर्स नीचे लगेगा, और अगर हम B क्रॉस V करेंगे तो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। तो हम V क्रॉस B किसके लिए करेंगे, जहां पे Q पॉजिटिव है। अगर Q पॉजिटिव है देन वी हैव टू डू V क्रॉस B, देन फोर्स नीचे की ओर लगेगा। एंड इफ द रॉड इज नेगेटिव, देन वी हैव टू डन माइनस अंदर चला जाएगा तो B क्रॉस V हो जाएगा। तो माइनस अंदर जाने के बाद B क्रॉस V करना है, तो B तो हमारा इनसाइड है और V इस तरफ है, तो फोर्स तब ऊपर की ओर लगेगा। तो प्लस चार्ज के लिए फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो हमारा इसके अंदर जो भी चार्ज मिक्स था उसमें से प्लस चार्ज नीचे इकट्ठा होगा, और जो भी माइनस चार्ज के लिए फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है तो जो भी माइनस चार्ज है वो ऊपर की ओर इकट्ठा होगा। तो देखो पोलैरिटी बन गई, पॉजिटिव चार्जेस नीचे हो गए, नेगेटिव चार्जेस ऊपर हो गए। तो ये पोलैरिटी बनने की वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा। अगर लूप के अंदर देखें तो ये पोलैरिटी बन गई। अब इंड्यूस करंट के लिए हमें जो क्लोज लूप चाहिए वो है PQRS, देन करंट विल इंड्यूस इन दिस लूप, PQRS लूप। ओके, हम सिर्फ रॉड के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पोलैरिटी बन रही है। सिर्फ रॉड को कंसीडर करेंगे तो अभी इंड्यूस करंट नहीं होगा। ओके, करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेट्स ओके, देन F is equal to QVB, then the work done by this
फोर्स इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू एल, एफ डॉट डी के ऊपर से फाइंड किया F इंटू एल, देन F इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू एल। यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखे हुए वो बहुत ही इजी, आपको सिर्फ इसको समझने की जरूरत है। ओके, वी विल फाइंड द वर्क डन, देन इन द सेकेंड चैप्टर वी लर्न दैट इफ work done is divided by q charge. If the work done is divided by charge, then we find out the potential difference. और यहाँ पे हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ उसको क्या कह रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ। व्हाई वी कॉल दिस पोटेंशियल डिफरेंस टू इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पे पहले से पोटेंशियल डिफरेंस था नहीं, हमने जो मूवमेंट करवाई उसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसीलिए हम उसको इंड्यूस ईएमएफ कह रहे हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W by Q। यहाँ से हमने डेफिनेशन भी बनाई थी। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स पर चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, देन द W इज इक्वल टू QVBL by Q। हम ये Q कैंसिल करेंगे तो एप्सिलॉन विल बी BLV। देखो BLV, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो रॉड के अंदर इंड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और से ईएमएफ जो रॉड के अंदर इंड्यूस हो रहा है बाय मूविंग इट is BLV, we can find out from here, or considering whole the loop we can find out from here, and both they are identical। आप देख सकते हो दोनों का आइडेंटिकल ही आया है। रॉड के ऊपर से फोर्स से कैलकुलेट करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। अगर हम पूरी लूप कंसीडर करके मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, उसके ऊपर से फाइंड करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। मतलब हमारा आंसर वेरीफाई हो गया, ये सही है। ओके, तो आपको पता चला मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर से जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है वो कितना आ रहा है। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, बहुत सारी कैलकुलेशन इसके ऊपर से होगी। एप्सिलॉन इज इक्वल टू BLV। नाउ द सेकंड पोर्शन, अब वो फिगर को निकाल दो। द सेकंड पोर्शन इज एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन मींस व्हाट, जो हम फोर्स लगा के ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है, उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो कहां पे जा रही है, कैसे किस मैकेनिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये सब वो हमको देखना है। ओके, देन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड इज R, देन द I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R। ओम्स लॉ के ऊपर से ये तो पता चल रहा है, V by R। ओके, देन एप्सिलॉन विल बी BLV, कहीं से भी लिखो BLV अपन रेजिस्टेंस इज R, देन आवर करंट इंड्यूस्ड इज BLV अपन R। इंड्यूस करंट की फॉर्मूला क्या है, BLV अपन R। ये जो भी मैंने बॉक्स किए हुए फॉर्मूला वो जरूरी है। ओके, I is equal to BLV अपन R। Then we have to find out the power consumpted और power required to push the rod, हमको वो फाइंड करना है। ओके, तो I is equal to BLV अपन R आ गया। अब फोर्स लगाएंगे हम इस पे, ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, हम लगा रहे हैं वो फोर्स इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रॉड के ऊपर फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू ट्रैवलिंग इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में ट्रैवल करने की वजह से इस रॉड के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। हम उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमारे हाथों से वर्क डन कर रहे हैं, हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं। ओके, देन द फोर्स F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। ये फॉर्मूला अभी आपने फोर्थ चैप्टर में सीखी हुई है। इफ हम अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में L लेंथ का रॉड रखेंगे, ऐसी कोई फॉर्मूला थी, ऐसी डिजाइन थी, याद करो। अगर L लेंथ की रॉड को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखेंगे और उसको मूवमेंट करवाएंगे, तब उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसके अंदर से अगर I जितना करंट इंड्यूस हो रहा है और करंट फ्लो हो रहा है, तब उसके अंदर कितनी फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। ओके, और I और B की एक दूसरे के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, इसीलिए ILB क्रॉस निकालोगे तो sin 90 की वैल्यू 1 आएगी। ओके, तो F इज इक्वल टू ILB पता चला। अब I तो हमने फाइंड किया हुआ है, I इज इक्वल टू BLV अपन R, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, तो BLV अपन R इंटू BL और IL और LB कुछ भी कह सकते हैं। ओके, अब फोर्स हमको मिल गया, हमको क्या निकालना है, जब भी हम करंट हम जो पुश कर रहे हैं इस रॉड को, उस रॉड को पुश करने की वजह से हमने जो फोर्स जनरेट किया, उस फोर्स की वजह से पावर कितना यूज करना पड़ रहा है हमें। ओके, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू पुश दी रॉड,
how much power is required to push the rod with the constant velocity of v by applying force F. The power P is equal to F v लिख सकते हैं हम, पावर R, P R मीन्स R यहाँ पे रिक्वायरमेंट का R लिखा हुआ है सफिक्स में, ये कुछ और नहीं है। ओके, पावर P इज इक्वल टू एफ वी। एफ की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, बी एल। ये देखो बी एल दोनों दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी। तो देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इंटू आर इंटू यहाँ पे दूसरा एक वी है और ये वी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपन आर। तो ये पावर कौन सी पावर है, हम जो पुश करने के लिए रॉड को पावर दे रहे तो पावर रिक्वायर्ड टू पुश दी रॉड हमने फाइंड की। तो अभी क्या हो रहा है, हम रॉड को पुश कर रहे हैं, देखो हम रॉड को पुश कर रहे हैं, उसकी वजह से जो पावर हम उनको दे रहे वो कहाँ पे जा रही है, एनर्जी का हम कंजर्वेशन देख रहे हैं। ये कंसिडरेशन मींस क्या, हम कंजर्वेशन कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिडरेशन। ओके, तो पावर जो हमने अप्लाई की वो कहाँ पे कैसे यूटिलाइज हो रही है, वो पावर पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हम जो पुश कर रहे हैं उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट होने की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट फ्लो होने के बाद क्या होगा, वो करंट फ्लो होके चला जाएगा और रेजिस्टेंस की वजह से वो करंट रिड्यूस होके जीरो हो जाएगा। तो वो करंट जीरो होगा मतलब क्या होगा, वो जो करंट फ्लो हुआ उसके बाद में वो करंट रिड्यूस होके जीरो होने का मतलब है वो सारा करंट जूल हीटिंग या फिर वो हम बोलेंगे हीट करके निकल जाएगा। देन द पावर डिसिपेटेड बाय जूल हीटिंग, पावर डिसिपेटेड बाय जूल हीटिंग, तो पावर को जे लिखा है मतलब जूल हीटिंग से जो पावर लॉस हो रहा है वो, तो पावर लॉस बाय जूल हीटिंग इज आई स्क्वायर आर। तो जूल हीटिंग में हमने दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया, आई स्क्वायर आर, और ये फॉर्मूला भी हम सीख गए आगे की चैप्टरों में। ओके, तो पावर हीटिंग आई स्क्वायर आर, आई क्या है, आई हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो। देखो अगर हमारी इस तरीके की कॉइल है, अगर हमारी इस तरीके की कॉइल है और इसके अंदर से अगर ऐसे पावर करंट इंड्यूस हो रहा है तो ये करंट जब फ्लो होगा तो उसकी वजह से कॉइल हीट होगी, तो कॉइल हीट होगी तो उसके अंदर हीटिंग की वजह से हमारा पावर लॉस होगा। वो पावर कितना लॉस होगा वो हमको फाइंड करना है। तो पावर डिसिपेटेड और लॉस बाय जूल हीटिंग इज इक्वल टू पावर पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आर क्या है, आर इस कॉइल का रेजिस्टेंस है और आई क्या है, इस कॉइल के अंदर से फ्लो होने वाला करंट है। ओके, तो आई स्क्वायर आर एंड आई की फॉर्मूला हमको पता है बी स्क्वायर एल वी, और तो आई का स्क्वायर है तो क्या होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक और आर है, एक एक आर हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपन आर। देन पावर पी बाई सॉरी डिसिपेट होने वाली जूल हीटिंग की वजह से लॉस होने वाला पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपन आर है। एंड you know you can see that the both the formula power required or power applied by us is b square l square v square by r and the power lost by dissipating joule heating और dissipated heat dissipate होने की वजह से जो लॉस हो रहा है वो दोनों ही आइडेंटिकल है फिर से। तो उसका मतलब क्या है, हम जो पावर अप्लाई करेंगे वो पहले कन्वर्ट होगा। हम जो पावर अप्लाई करेंगे मतलब क्या, मैकेनिकल एनर्जी converts into electrical energy first and then it's convert into thermal energy। ओके, आपको ये समझ में आ रहा है एनर्जी कंसिडरेशन कैसे कन्वर्सेशन हो रहा है, आपको अभी पता चला। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में ईएमएफ जो जनरेट है उसकी वैल्यू क्या आई, उसका फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी एल वी एंड द पावर रिक्वायर्ड एंड पावर लॉस दोनों इक्वल आइडेंटिकल हो रहा है। अभी हमने आई की फॉर्मूला भी फाइंड की, ये बी एप्सिलॉन को आर से डिवाइड करेंगे तो आई भी मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पे जो भी आईएमपी फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला कैलकुलेशन में आ रही है वो सारी फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये जो बची हुई जगह है, और इसको इरेज करके हम लोग कैलकुलेशन सम एग्जांपल्स इलस्ट्रेशन जो हमारे इस थियरी के अंदर आ रहे हैं वो हम देखेंगे। ओके चलो, ओके तो अब हम एग्जांपल करेंगे इसी थियरी के ऊपर से। ओके, यहाँ पे हमने ये जो दो थियरी की उसके अंदर जितने भी फॉर्मूला है वो सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए, फ्लक्स का फॉर्मूला, फिर मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, फिर ईएमएफ को आर से डिवाइड करेंगे तो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला, फिर आई की वजह से वो रॉड के अंदर जो फोर्स लग रही थी वो आई एल बी, आई की वैल्यू बी एल वी अपन आर रखेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपन आर फोर्स की फॉर्मूला, फिर जो हीट डिसिपेटेड हो रही थी या फिर पावर रिक्वायर हो रहा था उसकी फॉर्मूला बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपन आर। तो ये सारी फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ 6.6 आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, मैं अपने लैपटॉप में से पढ़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके चलो आप यहाँ पे पढ़िएगा, अ मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ, रॉड की लेंथ क्या दी हुई है, L इज इक्वल टू 1 मीटर। अ मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, म्यू, 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड। आप जो मैं डेटा बना रहा हूं यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए और इमेजिनेशन भी होना चाहिए कि क्वेश्चन के ऊपर से क्या हो रहा है। ओके ओके चलो, तो 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड विथ वन एंड hinge at the center and the other end at the circumference of the circular metallic ring of radius 1 मीटर। ओके तो ये रेडियस भी वही हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या दिया हुआ है मैं ड्रॉ करता हूं, एक रिंग है मेटल की, उसकी रेडियस क्या है, रेडियस आर है, रेडियस आर, और जो हमारा रॉड है 1 मीटर का, उसकी रेडियस, उसकी लेंथ भी 1 मीटर ही है और इसकी रेडियस भी 1 मीटर ही है। तो मतलब हमारा रॉड अगर हम यहां से यहां तक रखेंगे, जिसका एक पॉइंट सेंटर पे होगा रॉड का और दूसरा पॉइंट इस सर्कमफ्रेंस पे रोटेट करने के लिए फ्री होगा। अगर हम 3D में फिगर बनाने की ट्राई करें तो ऐसा होगा। ओके, देन दिस इज अवर रॉड, एक सेंटर पे रखा हुआ है, दूसरा रॉड यहाँ पे सर्व करंट कनेक्ट हुआ है और इस रॉड की लेंथ क्या है, 1 मीटर, और इसकी ये जो रिंग रखी हुई है मेटल की, उसकी लेंथ भी, उसकी रेडियस क्या है, 1 मीटर। तो ये ऐसी डिजाइन तैयार होगी। ओके चलो आगे देखते हैं, कहाँ गया, रिंग ऑफ रेडियस 1 अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ सेंटर, यहाँ पे about an axis passing through a center and perpendicular to the plane of the ring as shown in figure। आप यहाँ पे फिगर शो करो और फिगर देखो, वहां पे भी पता चलेगा। A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere। ओके, यहाँ पे देखो रिंग के अंदर वो जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो अंदर जा रही है, देखो कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इनवर्ड है, इनवर्ड बी पासिंग ऑफ फ्रॉम ऑल द रिंग का सारे एरिया के अंदर से वो पास हो रही है। ओके चलो आगे क्या दिया हुआ है, और उसकी वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 1 टेस्ला। डेटा भी इनपुट करते रहेंगे। कहाँ गया, व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग, यहां से यहां के बीच में, इन दोनों के बीच में ईएमएफ जो जनरेट होगा वो हमको फाइंड करना है, वो कितना वोल्ट आएगा। ओके चलो, तो फिर यहाँ पे जो रॉड है वो मूव हो रहा है, मूविंग, रॉड इज मूविंग नाउ, देन हमको मोशनल ईएमएफ की जरूरत पड़ेगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू बीएलवी। अगर हमको ईएमएफ ही ढूंढना है तो हम शुरू यहाँ से ही कर सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू बीएलवी। ओके लेट्स फाइंड आउट हमको क्या क्या डिटेल दी हुई है और क्या नहीं दिया हुआ है। अब बी की बात करें तो बी तो दिया हुआ है 1 टेस्ला। लेंथ की बात करें तो रॉड की लेंथ भी हमको पता है, 1 मीटर, जो रेडियस है वही है। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी हमको पता है। वेलोसिटी हमको नहीं पता है, पर वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और ओमेगा हमको नहीं पता है, पर ओमेगा की जगह पे फ्रीक्वेंसी दी है, देन वी कैन कन्वर्ट ओमेगा इनटू फ्रीक्वेंसी। देन दिस इज द रेडियस आर, ओमेगा भी जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पाई म्यू। ये फॉर्मूला तो पता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू फ्रीक्वेंसी के अंदर। ओके चलो, तो v इज इक्वल टू, v की जगह पे हम आर ओमेगा लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई म्यू ओमेगा। इतना जो दिया हुआ वो लिख देते हैं। तो बी एल, वी की जगह आर इंटू ओमेगा, अब बी एल आर ओमेगा की जगह पे 2 पाई म्यू। ओके चलो, तो अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे उससे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमको रेडियस भी पता है, लेंथ भी पता है। फिर भी ये आंसर रॉन्ग आएगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये जो लेंथ है एल, वो हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते कि पूरी लेंथ के ऊपर इतना ही ईएमएफ जनरेट होगा। हमको क्या करना है, इस पूरी लेंथ के ऊपर से थोड़ा सा माइनर डीआर जितना, डीआर लेंथ का हमको एक, सॉरी, और ये से डीएल, आर रेडियस है तो डीआर ही लिखते हैं, डीआर लेंथ की एक क्रॉस सेक्शन को लेना है,
उस क्रॉस सेक्शन के लिए पहले ईएमएफ ढूंढना है और उस ईएमएफ को इंटीग्रेशन करके पूरे रॉड के लिए निकालना है, क्योंकि ये रॉड पूरे रॉड के अंदर कितना ईएमएफ कहां पे जनरेट होगा हमको वो नहीं मालूम है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो एल लेंथ दी हुई है उसकी जगह ये डी आर लेंथ के लिए ढूंढ रहे, तो एल की जगह हो जाएगा ये डी आर। ओके, देन ये एल की जगह पे भी हो जाएगा डी आर। ओके, वी की जगह पे हमने क्या लिखा, आर इंटू ओमेगा, आर इज व्हाट, रेडियस, डी आर रेडियस के अंदर। ओके चलो, तो एल की जगह हो गया हर जगह पे डी आर। तो अभी जो हमें ईएमएफ मिला वो ईएमएफ ओनली फॉर डी आर लेंथ के लिए ईएमएफ कितना जनरेट होगा वो हमको मिल गया। अभी हमको क्या करना है, पूरे रॉड के अंदर कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे रॉड के लिए इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो अब अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आर 2 पाई म्यू इंटू डी आर, कहां से कहां तक के लिए, रॉड की जीरो लेंथ से लेके यहां तक के लिए। तो जीरो से यहां तक की लेंथ को क्या बोलेंगे, जीरो से यहां तक की लेंथ को रेडियस ही बोलेंगे। तो लिमिट, लोअर लिमिट क्या आएगी, जीरो, और अपर लिमिट क्या आएगी, आर। आपको समझ में आ रहा है, डीआर के लिए ढूंढा, फिर डीआर का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी रॉड के लिए हमें मिल जाएगा। ओके, देन वी कैन, हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, क्या क्या नहीं चेंज होगा, बी नहीं चेंज हो रहा है, 2 पाई म्यू भी नहीं चेंज हो रहा है, 2 पाई म्यू। तो अंदर क्या रह गया, 0 टू आर, ये एक आर और ये डी आर। ओके चलो, तो हमें आर का इंटीग्रेशन करना है। तो आर का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, जो भी पावर है वो पावर में एक ऐड होगा और उतना ही पावर नीचे लिखा जाएगा। कुछ नहीं दिया है मतलब इसका पावर 1 है, तो आर रेस टू 1 का 1 प्लस 1 क्या होगा, आर रेस टू 2 बाई 2। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे, हमारी फिगर यहाँ पे, इस फिगर को अब हम इरेज कर देते। ओके, इस फिगर को हम अगर निकाल दे तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। देखो, तो वो जो है एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई म्यू, आर का इंटीग्रेशन हुआ आर स्क्वेयर बाई 2, कहां से कहां लिमिट है, 0 टू आर। तो एक बार आर रखेंगे तो आर स्क्वेयर बाई 2, 0 रखेंगे तो 0। तो हमारा आंसर क्या है, बी इंटू 2 पाई म्यू इंटू आर स्क्वेयर बाई 2। तो यहां से हमको क्या करना है, अभी एक और फॉर्मूला याद रख लेना है। जब कभी भी अगर हमारी कोई रॉड सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही है और ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तब ये फॉर्मूला, अगर हम इसकी जगह ये लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इफ वी रिमेंबर दिस, बी ओमेगा आर स्क्वेयर बाई 2, व्हाई वी रोट दिस बी ओमेगा आर स्क्वेयर बाई 2, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू है। तो ओमेगा 2 पाई म्यू की जगह पे मैं ओमेगा लिख के रखूंगा तो चलेगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला इजी रहेगी याद रखने में। एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, कब, जब हमारा रॉड या अगर कोई भी चीज दी हुई है वो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही है, तब हमें क्या करना है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। अगर स्ट्रेट रेडियल मोशन में ट्रैवल कर रही है तब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी, बी इज इक्वल टू, सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू बी एल वी। तो अब ये रेडियल वेलोसिटी आएगी और ये आएगी एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। अभी हमको ओमेगा की जगह पे 2 पाई म्यू लेना है, क्यों, क्योंकि हमें म्यू की वैल्यू दी हुई है। अब हम डेटा इनपुट करेंगे, हमारे पास जगह ही नहीं बच रही। आप लिखते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, हम ये इरेज कर देते हैं। देखिएगा बहुत ही देखो, ये एक्चुअली में ये थियरी है, जो थियरी में देना चाहिए वो इल्यूस्ट्रेशन में दिया हुआ है। अभी ये फॉर्मूला है हमने थियरी से ही डिराइव किया, अब यहाँ से कैलकुलेशन है, यहाँ से इल्यूस्ट्रेशन है। ओके, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, 1 टेस्ला, 2 पाई की वैल्यू 3.14, म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है 50, आर की वैल्यू क्या दी हुई है, आर रेडियस 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर 1 मीटर ही होगा, एंड देन बाई 2। अब ये सारी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा, वो जो आंसर है वो, जस्ट अ मिनट, आंसर आएगा 157 वॉल्ट। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो यहां तक हमने जो भी कैलकुलेशन की, जो भी स्टेप्स गिने, वो सारा डेरिवेशन था इस फॉर्मूला को लाने के लिए। अगर दूसरी बार अगर हमें ऐसा ही कोई क्वेश्चन मिला जिसके अंदर सर्कुलर में रोटेट हो रहा है कुछ भी, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, 6.7। ओके, 6.7 जल्दी से 6.7। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, मैं इसके अंदर देख रहा हूं, कहाँ गया 6.7।
just a minute. Okay, a wheel with 10 metallic spoke. Okay, इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे तो फिर से ये व्हील है, इसका स्पोक कितने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 10 है। अभी मैंने 7 ही ड्रॉ किया, 8 9 और ये लो 10। ओके, इसको ऐसे, तो ऐसे 10 स्पोक वाला एक व्हील है। ओके, अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक ईच ऑफ 0.5 मीटर, ईच ऑफ 0.5 मीटर। तो यहाँ पे तो स्पोक की लेंथ ही दी हुई है, मतलब कि जो हमारी रेडियस है वही हमारी लेंथ होगी स्पोक की, और वो दी हुई है 0.5 मीटर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन के अंदर से पहला डेटा बना। लॉन्ग इज रोटेट विद द स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। ओके, अभी हमको डायरेक्ट ओमेगा दिया हुआ है, देखो स्पीड दी हुई है, स्पीड तो रोटेट हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, वो कितनी दी हुई है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। हमको इसको कन्वर्ट करना होगा। ओके, बाद में कन्वर्ट करेंगे। चलो कहां पे गया, मिनट इन ए प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। तो ये ऐसे ही है। अभी हम सोचेंगे कि हमारा अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे बॉर्ड के अंदर जा रहा है, तब ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो वो नॉर्मल हो गया। ओके, देन क्वेश्चन मेरा स्मॉल है ना, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ द मेटालिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल करा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या दिया, नाम दिया He। ओके, एट द प्लेस इफ द He इज इक्वल टू 0.4 गॉस। ओके, चलो He इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन हम इस तरीके से लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या दी है 0.4 गॉस। देन एट द प्लेस व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द एक्सिस एंड द रिम ऑफ द व्हील। फिर से एक्सिस और रिम ऑफ द व्हील की वजह बीच में इंड्यूस ईएमएफ कितना जनरेट होगा वो हमको फाइंड करना है। ओके, ऑफ द व्हील, नोट दैट 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होगा। हमने ये इस तरीके से याद रखा है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻4 गॉस। ओके, चलो तो हमको अब क्या करना है। ओके, इसमें अब कैलकुलेशन करते हैं। अभी हमको 10 स्पोक दिया हुआ। सबसे पहले अगर हम एक स्पोक के लिए कैलकुलेशन करेंगे, एक स्पोक के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो हम अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बी ओमेगा आर स्क्वायर अपन 2। अभी जो हमने डिराइव किया था वही। क्यों डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिर से स्पोक सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है तो हमें फिर से वो सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखेंगे क्या क्या दिया है, बी हमको दिया है, ओमेगा भी हमको दिया हुआ है, आर भी हमको पता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। पर ये ओमेगा जो है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट के अंदर दिया हुआ, उसे हमें रेडियन पर सेकंड के अंदर लाना पड़ेगा। चलो तो हम पहले ओमेगा की कैलकुलेशन करते हैं। वो कहां करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो एक रिवोल्यूशन में कितना रेडियन होता है, हम रिवोल्यूशन को ही रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 120 इज जस्ट अ नंबर, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, हमको रिवोल्यूशन को ही मिनट में सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहां से हम शुरू करेंगे, तो यहां से ये घूम के यहाँ पे फिर से यहाँ पे आए तो हमारा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। इफ 1 टर्न इज कंप्लीट देन 1 रिवोल्यूशन इज कंप्लीट। ओके, तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया तो हमने डिग्री में कितना ट्रैवल किया 360 डिग्री, और रेडियन में कितना ट्रैवल किया तो 2 पाई रेडियन। तो एक रिवोल्यूशन की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। ओके, तो ये रिवोल्यूशन रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड, 60 सेकंड। तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो 120। अभी हम क्या करेंगे, 0 से 0 कन्वर्ट, ये कन्वर्ट होगा 6, तो ये होगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये होगा हमारा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये क्या आंसर है हमारा, ओमेगा का रेडियन पर सेकंड में आंसर आ गया। चलो ये वैल्यू भी हम इनपुट करेंगे। अब हमको कैलकुलेशन ही करना, ये बी नहीं है, ये ईएमएफ जनरेट होने वाला है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। मैं कभी कुछ बोलता कुछ और हूं और लिख कहीं पर कुछ और देता हूं, आप थोड़ा नोट ध्यान दीजिएगा। बी इज इक्वल टू क्या है 0.4, 0.4, पर ये गॉस है, और एक गॉस की जगह पे कितना लिखा जाएगा 10⁻4 टेस्ला। हम सब सारे यूनिट को एमकेएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओमेगा की जगह पे 4 पाई इंटू 4 पाई है, और आर कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर अपन 2।
अब इस सारी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर जो आ रहा है 6.28 इंटू 10⁻⁵ वॉट। ओके, तो ये दो सम्स थे वो इजी सम्स थे। ओके, अब हमको क्वेश्चन आएगा, अगर हमारा यही आंसर आ रहा है तो ये आंसर तो हमारा एक स्पोक की वजह से ही आया, और यहाँ पे तो हमको 10 स्पोक बोला था, क्वेश्चन में पहले ही बोला था 1 2 3 4 10 स्पोक है, तो हमने क्यों एक ही स्पोक का ढूंढा? क्यों? क्योंकि 10 की 10 स्पोक में जो भी ईएमएफ जनरेट होगा वो सबके सब पैरेलल होगा। वो कैसे समझते? सोचो इस स्पोक को यहाँ पे है ना, इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ इतना। तो सोचो यहाँ पे अगर पॉजिटिव पोलैरिटी बन रही है और यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी बन रही है, तो हर एक स्पोक के अंदर यहाँ पे हर जगह पे पॉजिटिव 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 सारी पॉजिटिव पोलैरिटी बनेगी, और हर एक स्पोक के अंदर बाउंड्री के ऊपर नेगेटिव 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 पोलैरिटी बनेगी, और ये सारे देखो पैरेलल 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 में हो जाएंगी। और हमको पता है पैरेलल में तो वोल्टेज हर एक का एक जैसा ही होता है। अगर वो सीरीज में होता तो हमको एडिशन करना पड़ता, एक का ढूंढा इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा, तब हमको आंसर मिलता है अगर सीरीज में होते तो सारे स्पोक। और अभी तो ये सब पैरेलल में, पैरेलल में है मतलब क्या? पैरेलल में है मतलब सबका एक जैसा ही आंसर आएगा। सीरीज में बनाना है तो कैसे बनेगी? एक स्पोक के ऊपर दूसरा स्पोक लिखो, उसके ऊपर तीसरा स्पोक रखो, ऐसे करेंगे तो एक लंबी रॉड तैयार होगी। ये सारे स्पोक अब सीरीज में, अब ये रॉड पूरी तरह से सर्कुलर में रोटेट कर रहा है, तो हमने अगर एक का फाइंड किया उसको मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा, तब जाके हमको 10 स्पोक का ईएमएफ मिलेगा। ओके, तो हमको समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर से भी एक क्वेश्चन है, एक इलिस्ट्रेशन है 6.1, और वो आईएमपी इलिस्ट्रेशन है, वो हम देखते हैं। चलो ओके, चलो तो अब 6.8 देखते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, मैं अपनी लैपटॉप में देखूंगा। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन है, पूरा अटेंशन यहाँ पे रखिएगा। ओके, रिफर टू अ फिगर 6.12। तो यहाँ पे ये फिगर आ गई, आप वो देखिए 6.12। द PQ ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 आउटवर्ड। ओके, देखो यहाँ पे पीक्यू रॉड है ना, पीक्यू रॉड वो एकदम यहाँ पे एकदम 0 पे x इज इक्वल टू 0 नीचे दिखाई दे रहा है, x बराबर x इज इक्वल टू 0, वहां से वो आउटवर्ड में मूव कर रहा है। ओके, द यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड फील्ड is perpendicular to the plane and extended from x is equal to 0 to x is equal to b। फिगर में देखो x is equal to 0 से लेके x is equal to b तक ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और वो सारे डॉट 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 है, मतलब क्या? b मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है। अगर क्रॉस क्रॉस कर होता है तो इनवर्ड होता है, सॉरी। ओके, बाहर की ओर आ रहा है 0 to extend to x is equal to 0 to x and is 0 from x is greater than b। और आप देख सकते हो x is greater than b के लिए कुछ भी 2b तक देखो कुछ भी नहीं है, 0 ही है। Only the arm PQ processing substantial resistance R, मतलब PQ के पास ही थोड़ा बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, दूसरों किसी में के अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। Consider the situation when the arm PQ is pulled outward from x is equal to 0 to x is equal to 2b। हमको क्या करना है, x is equal to 0 से लेके x is equal to 2b तक हमको PQ रॉड को पुल करना है, मतलब आउटवर्ड में हमें पुश करना है, इस तरह से देखे तो। ओके, चलो कहां गया, x is equal to 2b and is then moved back to x is equal to 0 with a constant speed v। ओके, हमें v स्पीड से उसे बाहर ले जाना है और v स्पीड से फिर से अंदर लाना है। obtain the expression for the flux। ओके, एक हमको फ्लक्स फाइंड करना है फाइ, दूसरा इंड्यूस ईएमएफ एप्सिलॉन, थर्ड द फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म F and the power dissipated as a joule heat। ओके, हमको पावर को P कहेंगे, तो ये हमें 4 क्वांटिटी फाइंड करनी है। स्केच द वेरिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्वांटिटीज विद द डिस्टेंस। ओके, तो हमें उसको फिर से स्केच भी करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले कहां पे पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, देखो अभी आप वो फिगर देखो, फिगर के हिसाब से अगर हम फ्लक्स से शुरू करें, ये 4 क्वांटिटी हमको फाइंड करनी है, और देखो हमारे पास सारे फॉर्मूला है, फ्लक्स का भी फॉर्मूला है, मोशनल ईएमएफ का भी फॉर्मूला है, फोर्स का भी फॉर्मूला है, और पावर का भी फॉर्मूला है। हमने बोला ना ये सारे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम बिगिनिंग। फर्स्ट वी फाइंड आउट फ्लक्स। फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट इज इट, बी ए कॉस थीटा।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ओके, चलो हम दो कंडीशन लेते हैं, 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, एंड सेकेंड कंडीशन बी लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2b। मीन्स व्हाट, हम 0 से लेके b तक अलग से फ्लक्स ढूंढेंगे और b से लेके 2b तक डिफरेंट फ्लक्स ढूंढेंगे। यही सारी चीजें चारों के अंदर हम करेंगे। तब 0 से लेके b तक हमारा फाई b इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड को अगर b का तो वो तो b ही रहेगा। एरिया क्या होगा, एरिया x इंटू बी, x इंटू विथ क्या है l दी हुई, x इंटू एल, देन कॉस थीटा, थीटा बिटवीन b एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर आ रही है, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर होगा, तो cos 0, तो cos 0 की वैल्यू तो 1 आएगी। तो हमारा जो 0 से लेके b तक आया वो हो गया BLX। ओके, BLX हो गया। अभी ये इंक्रीज हो रहा है, 0 से लेके b तक हमारा BLX इंक्रीज हो रहा है x तक। ओके चलो, फिर b से लेके 2b तक, b से लेके 2b तक फ्लक्स विल बी कांस्टेंट, वो भी BLX ही होगा। समझ में आ रहा है? पर याद रखो 0 के पास हमारा फ्लक्स फाई बी 0 है और 0 से लेके b तक पहुंचने पर ये हो जाता है BLX। फिर b से लेके 2b तक यही रहता है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन passing through the rectangular surface is not changing। बी के बाद अगर हम आगे 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 जाते ही रहेंगे फिर भी हमारे अंदर से जो पास होने वाला लाइन है वो चेंज नहीं होने वाला, उसकी कंटेनमेंट अभी ज्यादा नहीं होने वाली है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहां से फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है बी से लेके 2b के अंदर। अब हम क्या करेंगे, तो यही चीजें एप्सिलॉन के लिए ढूंढेंगे। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 से लेके x लेस देन b और b लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2b। आपको पता चल रहा है 0 से b तक और b से 2b तक हर जगह पे हम वो दो कंडीशन लगा रहे हैं। तो b यहाँ पे क्या होगा, तो b की फॉर्मूला, एप्सिलॉन की फॉर्मूला क्या यहाँ पे क्या, BLV। अब ये BLV लिखेंगे तो भी मिलेगा, या फिर हम लोग यहां से शुरू करें माइनस डी फाई बी बाई डी टी। हमारी एप्सिलॉन की फॉर्मूला फैराडे के नियम के हिसाब से तो यही है, उसके ऊपर से हमने ये फाइंड किया था। यहां से इजीली आंसर मिलेगा, इसलिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, देन दी फ्लक्स ईएमएफ, मेरे से इसी से कर लेते हैं क्योंकि माइनस प्लस की फिर से कंफ्यूजन आएगी। तो यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा BLV और यहाँ पे हो जाएगा 0। क्यों देखो, चलो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। हमारा जो रॉड को हम पुश और ये और से हम पुल इट आउट कर रहे हैं, तो वहां पे पहले 0 से लेके b तक हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, 0 से लेके BLX तक, तो वहां पे हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। तो उसका आंसर क्या आएगा, b इंटू लेंथ ऑफ l इंटू वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v से हम ले जा रहे थे तो BLV आएगा। पर फिर b से लेके 2b तक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, b से लेके 2b तक ये फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स कांट चेंज देन ईएमएफ नॉट जनरेटेड, तो यहाँ से यहाँ तक ईएमएफ जनरेट नहीं होने वाला है। उसी तरीके से हम अगर फोर्स फाइंड करें तो फोर्स, इफ वी फाइंड फोर्स देन फोर्स इज इक्वल टू ILB, फोर्स इज इक्वल टू ILB। तो I क्या है, BLV अपन R। तो BLV अपन R हमने फाइंड किया हुआ है, BLV अपन R हमने फाइंड किया हुआ है। मतलब क्या, BLV फोर्स के लिए मैं लिखूं तो ये लिख सकता हूं, BL में ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपन R और F इज इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू X लेस देन और इक्वल टू B, और यहाँ पे B लेस देन और इक्वल टू X लेस देन और इक्वल टू 2B। अभी देखो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें समझनी बाकी हैं। ये मैंने क्या किया, फोर्स जहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अगर 0 से लेके B तक जाने में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो हमें उससे पुल इट आउट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो ये वो फोर्स है, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपन R। पर जहां से ईएमएफ चेंज ही नहीं हो रहा है तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है। अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो फिर हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए F 0 आ गया। अब पावर की बात करें तो जहां पे फोर्स लग रही है वहां पे पावर भी यूटिलाइज होगा। तो पावर की बात करें तो पावर की फॉर्मूला हमारे पास क्या है, B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपन R। तो जहां पे ये फोर्स लग रहा है 0 से लेस देन X लेस देन
टू बी, वहां पे पावर भी रिक्वायर होगा। पावर की फॉर्मूला बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपन आर, और बाद में जो पावर आएगा जीरो, सॉरी बी लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू टू बी, तो वो हो जाएगी जीरो। ओके, अब क्या है, अभी हमने तो सिर्फ एक ही चीज की, यहां से जीरो से लेके टू बी तक किए, सॉरी टू बी तक ट्रैवल किया। अब हमको क्या करना है, टू बी से लेके फिर से जीरो तक ट्रैवल करना है। ये आउटवर्ड है और फिर से हमको इनवर्ड भी आना है। ओके, तो आउटवर्ड के लिए हमने जो लिखा वही होगा इनवर्ड के लिए भी, पर उल्टा। क्यों? क्योंकि इनवर्ड में फिर से आएंगे तो टू बी से लेके बी तक कुछ भी चेंज नहीं होगा, टू बी से लेके बी तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर फिगर के हिसाब से देखें तो एम से लेके एल तक, रिटर्न में देखो एम से लेके एल तक फिर से कुछ नहीं चेंज होगा, और एल से लेके के तक फिर से उल्टा हो जाएगा। पहले इंक्रीज हो रहा था के से लेके एल तक, के से लेके एल तक इंक्रीज हो रहा था फ्लक्स, तो अब डिक्रीज होगा, तो उल्टी उल्टी साइन आएगी। और फिर ये क्या है, ईएमएफ जनरेट हो रहा था वो अगर ईएमएफ जनरेट हो उसकी पोलैरिटी ऊपर पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव थी, तो अब रिटर्न में आएंगे तो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, मतलब चेंज होगा। हर एक चीज चेंज होगी, बस एक चीज चेंज नहीं होगी, वो है पावर। क्यों? क्योंकि पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट अ टाइप ऑफ पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट ए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या, अगर हमने जाते वक्त पुल करते वक्त अगर पावर ये लगाया तो ऐसा नहीं होगा कि रिटर्न में आते वक्त उल्टा पावर लगाएंगे, फिर भी पावर ही लगाना है। रिटर्न में आते वक्त भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट चेंजिंग हो रहा है, उसके हिसाब से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उसके हिसाब से फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जो हम लगा रहे वहां पे हम जो पावर लगाए वो पावर दूसरी बार भी पॉजिटिव ही आएगी। सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से फोर्स भी नेगेटिव आएगा। अब हम देखते हैं ये जो हमारी फिगर है ना, हम उसको इस तरफ ले लेते हैं। आप वहां पे भी देखिएगा, यहाँ पे मैंने ये जो डिजाइन तैयार की है ना उसके अंदर लिखने वाला हूँ। पहले में हम फ्लक्स की डिजाइन, हमें स्कीमेटिक डायग्राम भी तैयार करना है, इसलिए फ्लक्स, फिर हमको फ्लक्स के बाद ईएमएफ, ईएमएफ के बाद फोर्स, और फोर्स के बाद पावर, और इनको एक ही स्केच में तैयार करना है। तो ये हमारा के है, के से लेके हम जाएंगे एल तक, एल से लेके हम टू बी यानी कहां तक, एम तक पहुंच गए। देखो यहाँ पे देखो, के से लेके एल तक, एल से लेके एम तक पहुंच गए। अब एम से फिर से रिटर्न आना है, तो रिटर्न में फिर से ये हो जाएगा एल, और एल से फिर से ये हो जाएगा फाइनल के। तो यहां से यहां तक जो है वो हमारा आउटवर्ड है, और यहाँ इस तरफ, और यहां से यहां से एम से लेके फिर से के जा रहे हैं, वो क्या है, इनवर्ड है। ओके, तो देखो के से लेके एम तक, के से लेके एम तक हमारा आउटवर्ड है, फिर एम से लेके एल तक हमारा फिर से इनवर्ड है। ओके, इतना समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे मैं स्केच तैयार कर रहा हूं, तो के से लेके एल तक फ्लक्स गेट चेंज एंड इंक्रीजेस। देखो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, जीरो से लेके बी एल एक्स तक इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, पॉजिटिव बी एल एक्स, और नीचे हो जाएगा माइनस बी एल एक्स। इसी तरह से यहाँ पे ये पॉजिटिव बी एल वी, देखो ये आपको बनाना आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, माइनस नेगेटिव बी एल वी। उसी तरह से फोर्स की क्या फॉर्मूला है, पॉजिटिव बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपन आर। मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए ये थोड़ा कॉम्पैक्ट हो रहा है, आपको इतना नहीं करना है। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपन आर, और ये पावर के अंदर आएगा पॉजिटिव बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपन आर, और यहाँ पे होगा नेगेटिव बी स्क्वायर अपन एल स्क्वायर अपन आर, और ये तो नहीं आएगा, नेगेटिव होगा ही नहीं। चलो देखो, तो अभी क्या हुआ, के से लेके एल तक, जीरो से लेके बी, ये कहां लिखो, जीरो से लेके बी, यहाँ पे लिख के रखता हूं, जीरो बी टू बी जीरो, ये आउटवर्ड, ये फिर से इनवर्ड। ओके, यहाँ से गए फिर से आ रहे हैं उसके लिए। चलो, तो जीरो से लेके बी तक मेरा फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो ये मैंने लिखा है इंक्रीज। फिर बी से लेके टू बी तक फ्लक्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट कांस्टेंट तो है, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? जीरो से लेके बी तक इंक्रीज हुआ, फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पासिंग थ्रू इट आर नॉट चेंजिंग, तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज नहीं होगा, पर रहेगा तो सही, जीरो नहीं होने वाला। इसीलिए यहां से लेके टू बी तक फ्लक्स इज कांस्टेंट, बट अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ तो नहीं जनरेट होगा। तो हम ये टू बी के लिए अब ईएमएफ की बात करते हैं। तो देखो, जीरो से लेके बी तक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो तब ईएमएफ भी जनरेट होगा ही होगा, ईएमएफ भी जनरेट होगा ही होगा। देखो यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूं उसको समझने की, फ्लक्स इंक्रीजेस देन ईएमएफ आल्सो जनरेट
बट हमने लेंस लॉ में क्या पढ़ा है, जो ईएमएफ जनरेट होगा वो उसकी डायरेक्शन जो फ्लक्स चेंजिंग हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हमको ये पता है अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ डिक्रीज होने वाली डायरेक्शन में यहां तक मैक्सिमम होगा। फिर क्या है, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ जीरो हो गया। देखो यहाँ पे भी देखो, ईएमएफ इज इक्वल टू बीएलवी, वो क्या हो रहा था, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे नेगेटिव की साइन आएगी। ये मैंने बताया ना, ऐसे शुरू करना है, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। अगर हम ऐसे शुरू करते, देखिए फाइव बी की जगह पे क्या लिखते, बी एल एक्स। अब क्या होगा, बी एल कॉमन निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा। देखो बी एल कॉमन निकल गया तो बाहर क्या है, माइनस बी एल, अंदर रह गया है डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी की जगह पे क्या लिखेंगे, वी। तो हमारा फाइनल जो आंसर है ना वो होगा माइनस बी एल वी। ओके, तो ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, पर ये माइनस नहीं होगा। आपको अब मैं समझाता हूं, देखो। ओके, तो ये माइनस यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं है माइनस, एप्सिलॉन वाई नॉट माइनस ओवर हियर, बिकॉज हमने जो आगे थियरी देखी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड था और हमारा रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर बाहर की ओर था, तो 180 डिग्री हो रहा था। इसी वजह से फ्लक्स हमारा नेगेटिव हो रहा था और बीएल भी पॉजिटिव होने वाला था। और ये हम लेंस के लॉ के ऊपर से भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जिस डायरेक्शन में चेंज होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पोलैरिटी तैयार होगी और उसी अपोजिट डायरेक्शन में करंट भी इंड्यूस होगा, हमको ये पता ही है। ओके, तो इसीलिए ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। ओके, अब एकदम करेक्ट हो गया है, माइनस बीएलवी। तो यहां से भी पता चल रहा है, देखो माइनस बीएलवी में हमको करंट ईएमएफ इंड्यूस हुआ कब, जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था तब। फिर क्या हुआ, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ क्या हो गया, जीरो हो गया। ईएमएफ जीरो है, यहां से यहां तक ईएमएफ जीरो है। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा, पूरा समझ में आना चाहिए पर स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा आएगा, चलेगा। चलो हम 2B तक ईएमएफ में भी पहुंच गए। अब बात करें फोर्स की, तो फोर्स भी क्या होगा, अगर ईएमएफ नेगेटिव डायरेक्शन में तो क्या होगा, अगर हम उसको पुल कर रहे हैं तो फोर्स भी उसी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ईएमएफ जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा होगा, तभी हमें पुल करने के लिए फोर्स बाहर से देना पड़ेगा। अगर हमारा फोर्स इसी डायरेक्शन में तो थोड़ा सा खींच के छोड़ दो फिर चला जाएगा। लेंस लॉ में हमने आगे में लेक्चर में देखा है एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता है, इसीलिए फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही होगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में मींस क्या, यहाँ पे नीचे ही फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर फोर्स यहाँ तक आने के बाद फिर से फोर्स जीरो, क्यों, क्योंकि ईएमएफ ही इंड्यूस नहीं हो रहा है, ईएमएफ ही इंड्यूस नहीं हो रहा है तो फोर्स भी जीरो, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक फोर्स भी जीरो हो गया। फिर क्या होगा, अब पावर की बात करें तो जहां पे फोर्स लग रहा है, जहां पे हमें खींचने के लिए, वो मैग्नेटिक फील्ड में से जो बाहर आने के लिए खींचने के लिए फोर्स लग रहा है, तो हमें पावर भी हमको अप्लाई करना पड़ेगा, पर पावर होगा पॉजिटिव। याद रखो, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। पावर हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। हमने पावर अप्लाई किया हुआ है, हमको पावर की रिक्वायरमेंट थी, हमने जो पावर अप्लाई किया उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, वो इलेक्ट्रिसिटी जूल हीटिंग में लॉस होने वाली है ही है। तो पावर हमेशा लॉस होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, समझ में आ रहा है। ओके, तो पावर पॉजिटिव हो गया। अब फिर से रिटर्न जाएंगे, जो हमने 2B बाहर निकाला हुआ है अब फिर से उसे पुश करेंगे, तो क्या होगा, 2B से लेके B तक जाएंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2B से लेके B तक हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है, 2B से लेके B तक हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है, 2B से लेके B तक हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट रहा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, इसलिए ईएमएफ जीरो का जीरो ही रहेगा। अब ईएमएफ जीरो का जीरो है तो फिर फोर्स भी जीरो का जीरो ही रहेगा। अगर हमने फोर्स ही अप्लाई नहीं किया तो पावर भी जीरो का जीरो ही रहेगा। यहाँ से ये तो जीरो था ही, यहाँ पे भी पावर जीरो का जीरो ही रहेगा। अब क्या हो रहा है, बी से लेके फिर से जीरो पे जाना है, बी से लेके फिर से जीरो पे, तो अब क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो अब क्या होगा, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमने जो अभी बताया कि नेगेटिव डायरेक्शन होनी चाहिए दोनों की, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इंक्रीज होगा। अगर ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स जो हमें अप्लाई करना पड़ेगा वो भी इंक्रीज होगा, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से, ईएमएफ जनरेट होने की वजह से जो भी करंट इंड्यूस होगा वो अगर लॉस होगा तो पावर लॉस होगा ही होगा। तो पावर तो लॉस कुछ भी करो, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, लॉस हो ही रहा है, इसलिए दोनों बार पावर का जो साइन है वही पॉजिटिव आएगा। तो इसके अंदर यही आईएमपी है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा तो पावर दोनों टाइम पॉजिटिव ही आएगा, जब भी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो पावर पॉजिटिव आएगा, जबकि ईएमएफ और उसकी वजह से फोर्स दोनों फ्लक्स की डायरेक्शन से उल्टी आएंगी। अगर फ्लक्स इंक्रीजेस देन ईएमएफ डिक्रीजेस, देन
और सॉरी ईएमएफ की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, उल्टी होगी, और उसी वजह से फोर्स भी उल्टी डायरेक्शन में मिलेगा। और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ की डायरेक्शन उससे उल्टी यानी डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा, और ये फोर्स भी हमारा इंक्रीज होगा, और पावर दोनों टाइम पे लॉस हो ही रहा है। अब मैंने अपनी तरफ से जितना हो सके उसे इजी करने की कोशिश की। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। अब यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं और अगली बार एडी करंट का टॉपिक है उसके साथ मिलते हैं। चलो, थैंक यू।